Good morning class, it is our science video class 7 exercise part 5th. So in our previous video we are solving our exercise of the chapter 1. So we will continue this. Okay. We have completed the exercise from हमने fill in the blanks में अपनी exercise complete कर ली थी. Now we will solve the remaining part. Let's start. First, a green plant does not need sunlight to make a starch. It means जो green plants है उनको क्या sunlight की ज़रूरत नहीं पड़ती for making a starch. They need sunlight ना, because sunlight is the major component through which the process occurs. So the answer is false. Next, the leaves get water from air. So leaves हैं they get water from air? No, they get water from soil. So the answer is false. Next, the iodine solution turns starch blue black. आयोडीन सॉल्यूशन है वो स्टार्च को ब्लू टू ब्लैक में कन्वर्ट करता है. ये आपके बुक की एक्टिविटी में गिवन है आंसर. आई विल शो यू. हियर इज एन एक्टिविटी सेकेंड. द 11th point. The color of the leaf has turned into blue-black. Starch plus iodine. आयोडीन को जब हम स्टार्च से रिएक्ट कराएंगे तो जो कलर है वो ब्लू टू ब्लैक हो जाएगा. और हमारा क्वेश्चन क्या है? आयोडीन सॉल्यूशन टर्न्स स्टार्च ब्लू ब्लैक. So the answer is true. Same as 4. A leaf lose its chlorophyll in warm alcohol. जो क्लोरोफिल है वो they lose its color because of alcohol. It is also the question of activity number 3, which is true. Next, heterotrophs cannot make their own food. Heterotrophs हमने पढ़ा था those organisms which cannot make their own food. And same the line says heterotroph cannot make their own food. जो heterotroph organism है वो खाना अपना खुद नहीं बना सकते. So the answer is true. And बाकी जो 3 remaining is you have to solve your own. वेरी सिंपल, बस आपको लाइन का मतलब पता होना चाहिए. जैसे कि क्लोरोफिल इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. जो क्लोरोफिल है वो क्या फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कोई इनिशिएट नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि क्लोरोफिल से ही द होल प्रोसेस आकर. तो द आंसर इज ट्रू. ओके. Next, you have to match the following statements like stomata. So you will match. यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स लिखे हुए हैं जैसे कि पैरासाइट न्यूट्रिशन, ग्रीन पिगमेंट, टाइनी पोर्स इन लीफ. बट हमारा क्वेश्चन क्या है? स्टोमेटा. सो व्हाट इज स्टोमेटा? इट इज़ अ टाइनी पोर्स इन द लीफ through which the exchange of gas occurs. So the answer is C. You can write the number 1. Next, iodine solution. Iodine solution parasite nutrition है या ग्रीन पिगमेंट और इट टर्न स्टार्च ब्लू ब्लैक. हमने अभी ऊपर भी कवर करा था कि स्टार्च जो आयोडीन सॉल्यूशन है वो स्टार्च को ब्लू टू ब्लैक में कन्वर्ट करता है. देन द आंसर इज D. Next, same oxygen liberated. Now, oxygen liberated
It is a parasite nutrition? No. Green pigment in leaf? No. During photosynthesis प्रोसेस के टाइम हमने इसे कितनी बार रिवाइज किया है कि जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के टाइम ऑक्सीजन रिलीज्ड एंड liberated means release of gas. So the answer is number 5. Next, give one word answers. You have to answer these question in one word. Where does photosynthesis take place in plants? Photosynthesis process कहाँ पर होती है students? It occurs in leaf. So you have to write leaf. Next, name a plant which is a heterotroph. You have to give the name of that plant which is a heterotroph. जो heterotroph है और heterotroph कौन से? Which cannot make their own food. So you can write non-green plant and mushroom because non-green they don't have a chlorophyll. Next, which vessels take water from roots to living plant? कौन सी vessel है जो वाटर को रूट्स तक लेके जाती है प्लांट्स? इट्स अ xylem vessel and it is highlighted in your book where the whole photosynthesis process described. Which bacteria fix nitrogen present in air? कौन सा बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करवाता है? And we already discussed is rhizobium so called as. Okay, so students, बाकी ये जो पेज नंबर 16 है, it is your homework, you have to do yourself. And our first chapter is fully completed, जिसमें हमने पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि न्यूट्रिशनल प्लांट्स क्या होते हैं, फिर हमने उसकी एक्सरसाइज पढ़ी और हमने पूरा रिवाइज भी करा. But in short, before starting our second chapter which is nutrition in plants, हमने पहले पढ़ा था प्लांट के बारे में. Now we discuss in animals. प्लांट्स में हमने कौन कौन से टाइप्स पढ़े थे? 2 टाइप्स के होते हैं प्लांट, जिसमें ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ. ऑटोट्रॉफ में हमने क्या देखा था? द ऑर्गेनिजम्स विच मेक देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद बनाते हैं. Next we saw heterotroph, and now heterotroph are the animals. Okay, and we human beings, we also come in heterotroph, those which cannot make their own food. फिर उसमें डिफरेंट टाइप्स के मोड थे लाइक पैरासाइट, सिम्बायोटिक, इंसेक्टिवोरस एंड सो ऑन. इन सेकेंड चैप्टर फर्स्ट वी विल डिस्कस कि कौन कौन सा स्टेप्स हैं जिसके थ्रू जब हम खाना इनटेक करते हैं देन इट गोज फ्रॉम डिफरेंट स्टेजेस लाइक इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन. फिर we will study about nutrition in amoeba. पहले लेकिन हम डिस्क्राइब करेंगे व्हाट इज़ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. जैसे प्लांट्स में न्यूट्रिशन किसके थ्रू होता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू. जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इनिशिएट होती है देन द प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. बट एनिमल्स में तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होती. सो हाउ दे मेक देयर फूड? They are dependent on plants or on animals. And plants में photosynthesis process में होती है leaf में. So leaf are the kitchen or called as the organ of the plant. But animal में किस तरीके से जो हमारा फूड है कैसे न्यूट्रिएंट में डिसोसिएट या फिर कैसे वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है. उसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं जैसे मैंने अभी आपको शो किया था इन द डायग्राम. इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट
digestion. We will discuss them in brief in our next video. मैं आपको सिर्फ शॉर्टली बता देती हूँ पहले. इंजेशन जब हम खाना या फिर फूड, when we intake a food or put a food in our mouth, so यहाँ तक की प्रोसेस, इतनी प्रोसेस हमारी हो गई इजेशन, जब हम खाना माउथ में रखते हैं. नेक्स्ट डाइजेशन. डाइजेशन जब हमारा फूड पाइप से स्टमक में एंटर करता है और वहाँ बहुत सारी रिएक्शन प्रोसेस्ड होती हैं, वो हो गया हमारा डाइजेशन, क्योंकि हमारा फूड जो है वो डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो गया है. सो इट मीन्स डाइजेशन. नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन. जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र होता है, देन वो देखो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का वर्क डिफरेंट है. स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो फूड को एब्जॉर्व करने में हेल्प करती है, और वो फूड एब्जॉर्व होता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है, जो उसमें मेन कंपोनेंट्स होते हैं. यू कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट. न्यूट्रिएंट गेट एब्जॉर्ब इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द वेस्ट इज transfer to large intestine, through which it excrete out with the anus. So it is a journal of our second chapter, different steps in nutrition. We will discuss in brief in our next video. Thank you.